मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल हमारा साथी श्रीमान भूपेन्द्र सिंह जी चुड़ासमा, श्रीमान बाबूभाई बोखरिया, सहकारी क्षेत्रना शिरोमणि श्रीमान घनश्यामभाई अमीन, भाई श्री नरहरिभाई अमीन, दिलीपभाई संघाणी, जयजयभाई पटेल, श्री विपुलभाई चौधरी, आदरणीय श्रीमान शिवराज जी, मंच पर विराजमान सर्वे महानुभावों અને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી પધારેલા સહકારી ક્ષેત્રના સૌ આગેવાનો, ગુજરાત બહારથી પધારેલા સર્વે મહેમાનો, આપ સૌનું ગુજરાતની ધરતી પર હૃદયથી સ્વાગત કરું છું। આ ભૂમિ સહકારની ભૂમિ છે। આ ભૂમિ सरकारी क्षेत्रे उमदा मापदंडों प्रस्थापित करनारी भूमि है। आ भूमिए सरकारी क्षेत्र द्वारा विश्व में पोतानी एक ओळख ऊभी करी है। एवी आ भूमि है अने ए भूमि में आप सबनु स्वागत करता हूँ अत्यंत गौरव अने आनंदनी लागणी अनुभवुं छुं। तो सहकारी क्षेत्र में अनेक बार अनेक विषयों पर आप सब मित्रों साथे बातचीत करवानो मने अवसर मळ्यो छे अने गुजराते पुरवार कर्युं छे के सहकारी क्षेत्र में जेम सहकारितानी भावना होय एम राज्य ने सहकारी क्षेत्र वच्चे पण सहकारितानी भावना होवी जोईए। जेम राज्य ने सरकार वच्चे सहकारितानी भावना होवी जोईए ए रीते सहकारी क्षेत्र अने सामान्य प्रजाजनो एनी वच्चे पण सहकारितानी भावना होवी जोईए अने ए त्रणेय बाबतोने गुजराते सुपेरे पार पाडी छे, एने पचावी छे। एक प्रकारे गुजरातना डीएनए नो हिस्सो बनी गई है अने एना कारणे संकटोनी वच्चे पण सामनो करीने आपणे आगळ धप्या छे। जे वखते माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक पर आफत आई, आफतना मूळमां जे लोको हशे पण एना कारणे आपणी नागरिक बैंको बधी संकट में आई गई अने ए वखते जो राज्य सरकारे हिम्मत भेर सुधारावादी पगला न लीधा हो तो संभव है आ राज्य 100 करता वधारे बीजी बैंको पत्ताना मैलनी जेम फरी पड़ी। सहकारी क्षेत्र में आव्या त्यारे हूँ मुख्यमंत्री तरीके पर नवो नवो हजू मारी शुरुआत थी अने सरकारी क्षेत्र एवं जो भूले चूके पण तमे एना 5 फूटनी रेंजमां जाओ तो पण जोखम ऊभुं थाय एवी मान्यता एवे वखते मैं पहल करेली अने मूलतः ए वखते भाजप साथे संबंधित लोको कोई सहकारी क्षेत्र में आवता ज नहीं, तो घणा खाटा लोको हता એટલે મૂળ કોંગ્રેસ ગોત્રના મિત્રો હતા છતાં મેં એમને બોલાવ્યા અને મારે આજે જયરામભાઈને યાદ કરવા છે, મારે આત્મારામ કાકાને યાદ કરવા છે કે આ બંને મહાનુભાવોએ એ વખતે સરકારના પ્રત્યેક નિર્ણયની બરાબર મીમાંસા કરી, વિશ્લેષણ કર્યું, નાની મોટીમાં સુધારા જરૂરી લાગે તો સુધારા સૂચવ્યા અને મને એમ કહ્યું નરેન્દ્રભાઈ ભલે જે કરવું એ થાય તમે હિંમતભેર આગળ વધો, આ જો નહીં કરીએ તો ગુજરાતનું સહકારી ક્ષેત્રને ઋણો લાગી જાય અને એ આપણે કરી શક્યા હતા। એનું કારણ ગુજરાતના સહકાર ક્ષેત્રના મૂર્ધન્ય મહાપુરુષો જેને કહેવાય એમનો મને સક્રિય સહયોગ રહ્યો હતો અને એના કારણે શક્ય બન્યું અને તેથી આ ક્ષેત્રે કામ કરનારા
અને મિત્રો આજની જે પેઢી સહકારી ક્ષેત્રે કામ કરે છે એના જ કારણે સહકારી ક્ષેત્ર ચાલે તેવું નથી. મિત્રો ગુજરાતની સહકારી ક્ષેત્રની આજની જે સ્થિતિ છે એના મૂળમાં 4-4, 5-5 પેઢીઓનો અવિરત તપશ્ચર્યાનો અંશ રહેલો છે. આપણા આગળની પેઢીઓએ चाहे मानसी भाई हो चाहे मोती भाई अनेक लोगों में तो कितना ने याद करी अनेक लोगों इवन हूँ आज बच्चे याद करते तो साबरजन भाई એટલો બધો મજબૂત છે કે ઘણીવાર ઇમારતમાં નાની મોટી ખામી આવી હોય તો ખબર પડતા પડતા 25-50 વર્ષ નીકળી જાય અને એના કારણે આપણે ભ્રમમાં પડી જઈએ. કઈ પાયો એટલો મજબૂત છે કે નાનો મોટો લૂણો લાગ્યો હોય તો જલ્દી ધ્યાનમાં નહીં આવે અને એવે વખતે આપણે દર 4-6 મહિને જરા જોવું પડે કે ઇમારત બરાબર છે કે નહીં ભાઈ, ક્યાં ઈંટ હાલી છે કે નહીં જરા જોવું પડે, ક્યાં લૂણો લાગ્યો છે કે નહીં જોવું પડે. અને આમાં સરકાર કશું કરતી નથી, કરી શકતી નથી, કરવા માંગતી પણ નથી. આ સરકારી ક્ષેત્ર પોતે જ કરવું પડશે. એના શુદ્ધિકરણનું કામ ઓટો પાયલોટ જ હોવું જોઈએ. અંદર આંતરિક વ્યવસ્થા એવી હોય કે સતત શુદ્ધિકરણ ચાલ્યા જ કરતું હોય. આ સતત શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા એ સહકારી ક્ષેત્રનું અનિવાર્ય અંગ છે. અને જો સતત શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા ન હોય તો જેમ વહેતું પાણી કોઈ એક જગ્યાએ જ્યારે ભેગું થઈ જાય તો એ ગંદવાડ બની જતું હોય છે. આ ગંદવાડ બનવા દેવો નથી આપણે. અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની વર્તમાન સહકારી ક્ષેત્રની પેઢી પણ મારા કરતા આ બાબતમાં વધારે જાગૃત છે, વધારે સક્રિય છે, વધારે સામર્થ્યવાન છે અને ઉત્તમ પરિણામ આપી શકે એવી છે. મિત્રો કેટલાક ભવિષ્યના પર વિચાર કરી શકાય. દાખલા તરીકે મેં અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકને એકવાર વિનંતી કરી હતી. મારા મંકોડી સાહેબ કહે છે ગુજરાત બહારના લોકો જો હિન્દીમાં બોલો. મિત્રો कुछ समय पूर्व मैंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्रीमान अजय भाई से बात की और मैंने कहा भाई सहकारी क्षेत्र के अनेक काम हो रहे हैं, क्या एक नया इनिशिएटिव आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ले सकती है? क्या मुख्यमंत्री कहेंगे तो कोई मना तो करता नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सरकार आपको सुझाव देती है इसलिए नहीं, आप इस क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाएं, एक नया प्रयास करें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं. आप अपने सभी डायरेक्टर्स के साथ बातचीत कर करके सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करके फिर अपना मन बनाएंगे. मित्रों काम मैंने उनको ये सुझाया था कि क्या हम अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूलों में बच्चों को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्या? शतरंज का खेल हमारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के परिवार का हिस्सा कैसे बने? हर स्कूल में शतरंज का खेल ये सहज प्रवृत्ति कैसे बने? क्योंकि इसके पीछे मेरी सोच थी कि आज की युवा पीढ़ी को, उसके मन को, उसके धैर्य के संस्कारों को सोच करके कदम रखने की आदत उसके अंदर कैसे आए, इसके लिए उसको ट्रेन करने की जरूरत है. शतरंज एक ऐसा खेल है कि जो बालक के विकास में, आज जब हम देखते हैं कभी कभी 17-18 साल की उम्र में भी बालक अपने पिता के साथ संघर्ष में उतर आता है, माँ के साथ संघर्ष कर रहा है, बाहर से घर में आया और कोई पूछता है कहाँ गए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है. ये जो बदलाव आ रहा है, ऐसे समय वो धैर्य खो देता है और कुछ भी रिएक्ट कर देता है. शतरंज के खेल में वो ताकत है कि उसके
मन को तैयार करें। मैंने कहा क्या अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इसको कर सकती है? मित्रों, आज गर्व के साथ मुझे कहना है कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने इसको मिशन के रूप में, एक सोशल सेवा के रूप में काम में लिया। आज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूलों में कम अधिक मात्रा में शतरंज का खेल ये सहज प्रक्रिया बनी है। 1200 से अधिक शतरंज के टीचर उन्होंने तैयार किए और आज राज्य कक्षा की स्पर्धा में, नेशनल कंपटीशन में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रयत्नों से जो शतरंज की प्रवृत्ति चल रही है, आज उन बच्चों को एक नाम रोशन करने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, हम कर सकते हैं। आज जब इतनी बड़ी मात्रा में आप बैठे हैं, कभी कभी ओलंपिक के जब खेल आते हैं तो हम लोगों को लगता है अरे हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता है, 125 करोड़ का देश, कुछ हो नहीं रहा है। मित्रों, उसके कारण होंगे, मैं उसकी किसी की आलोचना करने के लिए यहां नहीं आया, लेकिन क्या हर डिस्ट्रिक्ट की सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी इकाइयां, चाहे एपीएमसी हो, चाहे बैंक हो, जो भी हो, क्या सभी मिलकर एक छोटा सा हिस्सा निकालें, एक अपनी एक सबकी कॉमन कोई समिति बनाएं और तय करें कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम हम सहकारी क्षेत्र के लोग करेंगे। मुझे बताइए, नई पीढ़ी को सहकारिता क्षेत्र क्या कर सकता है, उसके संस्कार सहज रूप से हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आज एक उम्र के जो व्यवसाय रोजगार में लगे हैं, उनका ही सहकारी क्षेत्र से संबंध आता है, नई पीढ़ी के साथ नहीं आता। अभी अपने गुजरात की बेटी शूटिंग स्पर्धा में धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में, एशिया में, दुनिया के देशों में अपना नाम रोशन कर रही है। तो मैंने अमूल को फोन किया, विपुल भाई से मैंने बताया, मैंने क्या हम इस हमारे खिलाड़ी को, ये बच्ची को हम स्पॉन्सर कर सकते हैं कि अमूल की तरफ 50 चीजें अमूल करता है। 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे। विपुल भाई ने कहा साहब आप जो कहे वो, आप बच्ची को अभी भेज दीजिए, अमूल उसकी चिंता करे। मित्रों, हम मुनाफा बांटे वो एक बात, लेकिन हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा समाज के अंदर ऐसी शक्ति को संजो सकते हैं, ऐसी शक्ति का विकास कर सकते हैं कि हम एक क्षेत्र मेरे ध्यान में आता है कि और उसको हम टोकन नहीं कर सकते। आने वाले 5 साल का प्लान बना रखेंगे और आपको जानकर के खुशी होगी कि गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाने वाले हैं। इसका मतलब है कि नई स्कूल बनानी पड़ेगी, लेकिन आज जो स्कूल है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो करने के लिए तैयार हो, तो सरकार उसके साथ जुड़ेगी और हर डिस्ट्रिक्ट में जो टैलेंट है, उस टैलेंट को ट्रेनिंग मिले, अवसर मिले, उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था हो और हम अपने खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दें। इस काम की ओर सरकार कदम उठाने वाली है। शुरू में 2-4 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। क्या हमारा कोऑपरेटिव आंदोलन, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग, हम गुजरात को दुनिया में सीना तान करके खड़े रह सके, हमारे नौजवान, हम गर्व करें। आज भी मित्रों देखिए, स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरर जो हैं, उनकी बड़ी वाहवाही हो रही है दुनिया में, तो हमारी कोऑपरेटिव की वाहवाही कौन हो? और ये धन सच्चे अर्थ में काम क्यों ना है? आप सोच सकते हैं, कभी इस पर सोचिए। मुझे विश्वास है कि सहकार का समाज जीवन में परिवर्तन लाने, नए इनिशिएटिव लाने में एक बार हमारे यहाँ गुजरात में सहकारी क्षेत्र के मित्रों ने जल संचय के काम को प्राथमिकता दी। चेक डैम बनाने के अभियान को सहकारी क्षेत्र के मित्रों ने प्राथमिकता दी। उसका परिणाम ये आया कि इस राज्य में पानी संग्रह का, चेक डैम के काम को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई और सबके सहयोग से विशिष्ट निर्माण, नई परिस्थितियों में नया विचार,
ये लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम ज़्यादा रिलेवेंट बनते जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आर्थिक व्यवस्थाओं का ही प्रयोजन करते हो, उसका मैनेजमेंट करते हो, मुनाफा कमाते हो, पहुंचाते हो, यहां तक हम सीमित न रहे। हम समाज की शक्ति बने, हम समाज की शक्ति का विस्तार करने में काम आए, हम समाज की शक्ति को सघन करने में काम आए। अगर इन बातों को हम लेकर के चलते हैं तो हमारी सहकारिता क्षेत्र अनेक दिशाओं में आगे हम बढ़ सकते हैं। मित्रों, इन दिनों मैं हैरान हूं, सरकार सहकारी क्षेत्र में काम न रहे, ये तो मैं समझता हूं, लेकिन सरकार सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तो कोई काम कर सकते कि नहीं कर सकते, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि गुजरात ने श्वेत क्रांति में नाम कमाया है। डेयरी के क्षेत्र में गुजरात ने अपनी एक जगह बनाई है, अपना मैकेनिज्म डेवलपमेंट हो गया है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी काफी आधुनिकता की तरफ हमारे सहकारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। विस्तार की दृष्टि से भी पहले कच्छ सौराष्ट्र हमारा डेयरी उद्योग से वंचित रह गया था। पिछले 5-6 साल से उस पर भी बल दिया है। धीरे धीरे कच्छ और सौराष्ट्र में भी पशुपालन की दिशा में लोगों की रुचि बढ़ रही है, उनको दाम मिल जाए उसके लिए व्यवस्था पनप रही है। आज गुजरात के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में हमारा दूध जा रहा है। गुजरात के बाहर हिंदुस्तान के नागरिकों को भी अच्छे दूध की मांग है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। भारत सरकार को 50 बार कहा गया कि आप दूध ले जाने के लिए हमें रेलवे मुहैया कराइए, रेल टैंकर्स तय करें। मैं हैरान हूं मित्रों, भारत सरकार का इतना बड़ा रेल मंत्रालय, इनकी प्रायोरिटी में हिंदुस्तान के गरीब के घर दूध पहुंचे, ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं। और आज ट्रक टैंकर के द्वारा जो दूध पहुंचाया जाता है, जिस व्यक्ति के पास दूध पहुंचता है, तब तक 1 लीटर पर 1 रुपया अतिरिक्त खर्च हो जाता है। अगर हम सिर्फ, और मैंने सुना है कि हमारे डेयरी के मित्रों ने, कोऑपरेटिव के मित्रों ने भारत सरकार को कहा कि ये जो टैंकर बनानी है रेलवे वाली, उसका 4 करोड़ रुपया खर्चा आता है, वो खर्चा हम देने को तैयार है। यानी खर्चा कोऑपरेटिव मूवमेंट वाले देने को तैयार है, डेयरी देने को तैयार है, भारत सरकार की पटरी का सिर्फ उपयोग करना है। लेकिन हम जानते हैं वहां से सिवाय मौन कोई जवाब मिलता नहीं। मित्रों, हम कोई भी व्यवस्था तब चलती है जब इन व्यवस्थाओं के साथ हरेक की उस दिशा में सोच हो। अगर हरेक की उस दिशा में सोच नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। मित्रों, सहकारिता जो चलती है उसमें एक दूसरे पर भरोसा एक बहुत बड़ी बात है। अगर भरोसा टूट जाए तो सहकारिता आंदोलन चल ही नहीं सकता। सहकारिता आंदोलन की सबसे पहली ताकत है भरोसा, एक दूसरे के प्रति विश्वास, व्यवस्था के प्रति विश्वास, दिशा के प्रति विश्वास, प्रयासों के प्रति विश्वास, तब जाकर के होता है। लेकिन कभी कभी ध्यान में आता है, अब जैसे हमारे घनश्याम भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे कि 4 बैंक लुढ़क रही थी, हम उनका मरना ही तय था, कोई हाथ पकड़े बचाए तो बच सकती थी। और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि गुजरात सरकार ने 80 करोड़ रुपया देकर के इन 4 बैंकों को बचाया। मित्रों, वैद्यनाथन कमेटी के माध्यम से जो फॉर्मूला बनी है, उस फॉर्मूला के तहत हमने तो 4 बैंकों को बचाने के लिए 80 करोड़ रुपया दांव पे लगा दिया। सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों पर भरोसा करके लगा दिया। लेकिन उसी कमेटी के कारण गुजरात सरकार को जो 260 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, आज कई वर्ष हो गए
दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही। तो सहकारिता आंदोलन की सहकारिता भावना एक तरफा नहीं चल सकती। मैं हैरान हूं कि भारत सरकार जिसने खुद ने निर्णय किया है, अपने आप किया हुआ निर्णय है, लेकिन गुजरात सरकार को सहकारिता बैंक को बचाने के लिए 80 करोड़ खर्च देती है, लेकिन इतनी बड़ी देश की सरकार जिससे हक के पैसे गुजरात मांग रहा है, जवाब मौन। हर चीज का एक ही जवाब है वहां, हर समस्या का एक ही उकेल है, मौन, कीप मम। और उसके बाद कोई जवाब दे तो पता चले भाई क्या करें, कोर्ट में जाए, कैसे जाए, एप्लेट में जाए, कहां जाए, नहीं पूछे। ठीक है, आपका कागज आया, खड़ा है। मित्रों, पिछली बार हमारे राज्य में वर्षा देर से आई, अकाल की परिस्थिति पैदा हुई और करीब 10-12 वर्षों के बाद पहली बार संकट पैदा हुआ था, क्योंकि बीच में हम भूल गए थे हमारे यहाँ अकाल हो सकता है। वही अच्छी बारिश हो रही थी, अचानक पिछले वर्ष संकट आया। गुजरात सरकार ने योजना बनाई कि भाई बिजली के जो दाम हैं, अगर उसके हम आधे कर देंगे। दूसरा हमने कहा जो बैंक लोन लिया है किसानों ने, उस बैंक लोन के ब्याज को हम आधा कर देंगे। गुजरात ने तो कर दिया, कोऑपरेटिव बैंकों में अरबों खरबों रुपए का बोझ गुजरात सरकार को लगा। लेकिन भारत सरकार ने इस संकट में गुजरात का किसान जो नेशनलाइज बैंक के साथ जुड़ा था, उनको मदद करनी चाहिए, ढेर सारी चिट्ठियां लिखी। लेकिन भारत सरकार ने गुजरात के किसानों को, जो कि नेशनलाइज बैंक से जिन्होंने कर्ज लिया था, उनको एक नए पैसे की मदद नहीं। अब ये हमारे गले नहीं उतरता है कि कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ किसान को तो अकाल की आफत आती है, लेकिन नेशनलाइज बैंक से जुड़े हुए किसान को नहीं आती है, ये गले नहीं उतरता। सचमुच में तो भारत सरकार को उत्साह से कहना चाहिए था कि भाई आप किसान गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होने के बावजूद भी आप नेशनलाइज बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा आपका रिश्ता पुराना है, मजबूत है, आप चिंता मत कीजिए, इस संकट में समय हम आपके साथ हैं। अगर गुजरात सरकार 2 रुपये देती है तो हम 2.5 रुपया देंगे, ये होना चाहिए। लेकिन मित्रों, कठिनाई ये है कि आज भी गुजरात का किसान गत वर्ष जो अकाल के कारण संकट में था, वो अपने मुसीबतों के समय मदद मांग रहा है। नेशनलाइज बैंकों से लोन लेने वाला किसान, उसको मदद नहीं मिल रही है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से मदद लाने वाले किसान को गुजरात सरकार के माध्यम से आज मदद मिली है और इस संकट से बाहर आया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकारें भी, अब मैंने आज नाबार्ड की चर्चा सुनी, मित्रों, नाबार्ड को निर्णय क्या करना क्या नहीं करना उसकी कोई प्रोसेस हो, लेकिन सबसे पहली बात है जो घनश्याम भाई ने आधे वाक्य में उसका उल्लेख किया, हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है, वो है हमारे संघीय ढांचे को ही संकट में डाल दिया है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ही तहस नहस करने का प्रयास हो रहा है। इस देश के सभी राजनेताओं को समझना होगा कि ये देश न दिल्ली चलाता है, यह देश न गांधीनगर चलाता है, ये देश सभी राज्य मिलकर के, भारत सरकार और राज्य सरकार सब मिलकर के चला रही है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई नीचे है, न कोई ऊपर है, हम सब सहकारिता के आंदोलन की तरह एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बंधुता का भाव, तब जाकर के देश चल सकता है। लेकिन ये जो मूड बना है इन दिनों, अब ये सही है कि सहकारिता क्षेत्र राज्य का विषय है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो आप कौन होते हो राज्य को पूछे बिना इस प्रकार के नए नई योजनाएं घोषित करो, कानून घोषित करो, नई व्यवस्थाओं में परिवर्तन करो।
सहकारी क्षेत्र के लोगों को वो व्यवस्था पसंद है नहीं हो बात को विषय है। सहकारी क्षेत्र को नाबार्ड की नई व्यवस्था आवश्यक लगती है नहीं लगती हो बात का विषय है। सबसे अहम बात यह है कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को आप सम्मान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमारे संघीय ढांचे का आप सम्मान करना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर राज्यों के अंदर ये अधिकार राज्यों के क्षेत्र में आता है तो केंद्र सरकार का काम होता है कि वो एक सजेस्टिव बात भेजे, राज्य अपने सहकारिता क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करें कि भाई ये सुझाव आया है, आपको क्या लगता है, और जो भी राज्यों के लोगों का ओपिनियन होगा उसके आधार पर पॉलिसी बनती है। लेकिन इन दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से योजनाएं थोपी जाती हैं, राज्यों के सब्जेक्ट पर भी अतिक्रमण किया जाता है और राजनीतिक हेतु से अपने तरीके से योजनाएं घोषित करना और सारा बोझ राज्यों के ऊपर डाल देना, यही काम कर रहा है। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, गुजरात में 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल गत करीब 8-9 वर्ष से गरीबों को पहुंचाया जाता है ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। इससे बड़ी कोई फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। अभी भारत सरकार एक ऐसा नियम ला रही है जो हमारी थाली से, गरीब की थाली से रोटी छीन लेने का कार्यक्रम कर रही है। कहते तो हैं कि हम गरीब को रोटी देने का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के अनुभव से मैं बताता हूं, भारत सरकार का क्या काम था। उनका काम यह था कि भाई ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर के द्वारा आप पूरे राज्य में सर्वे कराइए, इस पैरामीटर में आने वाले लोग एक फूड सिक्योरिटी बिल के लाभार्थी होंगे। आप तय करो, झोपड़ी में रहता है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है, साइकिल नहीं है, दिखना है, जो भी आपको पैरामीटर तय करना भारत सरकार तय करे। हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए समान पैरामीटर हो और फिर उसका सर्वे हो, और उस सर्वे में कहीं पर 2 करोड़ लोग मिलेंगे, कहीं पर 1.5 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे। फिर तय होना चाहिए कि ये खोज करने के बाद, सर्वे करने के बाद जितने लोग निकले हैं उनको ये लाभ मिलेगा। मेरी बात बराबर समझ आ रही है भैया? मैं समझा पा रहा हूं आपको? जरा मुझे पता करें ना, क्या ठीक से समझा रहे हैं? होना तो यही चाहिए ना, पहले सर्वे होना चाहिए और तय हो कि भाई इस राज्य में 2 करोड़ है, इस राज्य में 1.5 करोड़ है, इस राज्य में 1 करोड़ है, तय हो। अब उसके अकॉर्डिंग फिर उनको मदद मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने क्या किया है, उन्होंने कहा फलाना राज्य इतनी संख्या, टिकना राज्य इतनी संख्या, फलाना राज्य इतनी संख्या, उनके प्रिय राज्य है उनको ज्यादा संख्या, उनको अप्रिय राज्य है उनको कम संख्या। और फिर क्या कहा, अब आप, हमने बता दिया भाई 1.5 करोड़, अब आप नीचे खोजो ये 1.5 करोड़ कौन होंगे, पैरामीटर आप तय करो। क्या आप कभी ये उल्टी गाड़ी चल सकती है? पहले सर्वे होना चाहिए, संख्या तय होनी चाहिए, फिर आंक तय होना चाहिए। और भारत सरकार की योजना के कारण क्या हुआ है, आज गुजरात में जो लाभार्थी हैं जिनको एक्चुअली 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलता है, इसमें 1 करोड़ 47 लाख 1 करोड़ 47 लाख इन लोगों के थाली से भारत सरकार ने खाना छीन लेने का अभी प्रावधान किया। मित्रों, ये जो चल रहा है, भारत के संघीय ढांचे को अस्वीकार करना, योजनाओं के नाम पर वाहवाही लूटना, लेकिन गरीब के साथ चीटिंग करना, मैं हैरान हूं। और भारत सरकार से मेरा आग्रह है वो पैरामीटर तय करें जो उनको ठीक लगे, जो उनकी ताकत हो उस प्रकार से करें, और उस पैरामीटर के अनुसार सर्वे हो, और सर्वे के तहत जो संख्या हो उनको ये लाभ दिया जाए। ये आप स्लैब सिस्टम नहीं ला सकते।
और इतना ही नहीं, किस राज्य को कितना लाभ मिलेगा इसके पैरामीटर क्या है। आपको प्रिय राज्य हो वहां तो करोड़ों लोगों को लाभ, आपको अप्रिय राज्य हो वहां पर करोड़ों लोगों को बजाय लाखों लोगों को राज। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और इसलिए सिर्फ राजनीतिक हेतु के कारण अगर ये प्रवृत्तियां चलती हैं तो भाइयों बहनों बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आप सहकारी क्षेत्र के लोग समाज के सुख दुख की संवेदनाओं को समझने वाले लोग हैं और इसलिए मैं अपने पीड़ा को आज आपके सामने व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, सहकारी क्षेत्र के आप लोग बैठे हैं, मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि सुझाव आप लोगों के लिए अनुकूल है प्रतिकूल है, लेकिन सोचना चाहिए। हमारे यहां सहकारी क्षेत्र में लगातार चुनाव होते रहते हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कोई सहकारी क्षेत्र का चुनाव न चलता, लगातार चल रहा। और चुनाव के लिए फिर मतदाताओं को लाना ले जाना, आपको कितना खर्चा होता है मुझे मालूम है, आप लोगों को कितनी कठिनाइयां जीतने के, ये सब मुझे मालूम है आपकी कठिनाइयां। गुजरात सरकार ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, टेक्नोलॉजी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए, नगर पालिका, महानगर पालिका, सरपंच, ग्राम पंचायत के लिए। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है और फुल प्रूफ है, भारत सरकार ने इसको बराबर देखा है। कोई भी वोटर अपने घर से अपने मोबाइल से वोट दे सकता है, अपने मोबाइल फोन से वोट दे सकता है। क्या भविष्य में सहकारी क्षेत्र के मित्र, अब कल उनके वोटर्स फिक्स हैं, संख्या सीमित है, रोज बरोज के संपर्क में होते हैं, वे अगर इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना अगर चाहते हैं, हम थोपना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं तो बिना खर्च लिए ये टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार कोऑपरेटिव वाले मित्रों को देने के लिए तैयार है। ये अगर हम करने में सफल हो गए मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान में आज जो वोटिंग की पद्धति है, चुनाव में भी घर से जाना पड़ता है, क्यू में खड़े रहना पड़ता है, फिर बटन दबाना पड़ता है, अगर ये प्रयोग हमारा व्यापक रूप से कोऑपरेटिव में सफल हो गया तो भविष्य में हिंदुस्तान भी जनरल इलेक्शन के लिए भी हो सकता है उस टेक्नोलॉजी पर चल पड़ेगा। तो कितना खर्चा बच जाएगा, लोगों का समय कितना बच जाएगा। अपने घर में अगर वो व्यक्ति चुनाव के दिन दिल्ली में है और उसको वोट करना है तो दिल्ली में भी अपने मोबाइल से वोट कर देगा, उसका वोट रजिस्टर हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकली फुल प्रूफ सिस्टम। क्या हम कुछ इनोवेटिव सोच हमारी सहकारी क्षेत्र की व्यवस्थाओं में कर सकते हैं तो हमने करनी चाहिए। और मुझे विश्वास है मित्रों कि आप लोग जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें कुछ न कुछ नई चीजें होगी। एक विषय है जो जरा चिंता का है, जिसको मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। मित्रों, यूपीए सरकार एक ऐसा निर्णय करने जा रही है जिसका सबसे बड़ा नुकसान गुजरात को होने की संभावना है, और वो है यूरोप के साथ भारत सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है। अब मजा देखिए, यूरोप के अंदर पार्लियामेंट में गाजे बाजे के साथ वहां की सरकारें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वाहवाही कर रही है। वहां की सरकारें गौरव से कह रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट